morning students, how are you? Today once again we are starting subject history and our topic of history, that is the three orders. Three orders in the sense कि in the society, in the ancient time there a society was divided into three categories, and all these three categories recommend their prestigious post, their criteria and their functions. So all these three societies divided into three categories, that is the clergy, noble and the peasant class. So in noble we have clear in the previous video कि what about the position of the nobles and what have they advantage and what they have the privilege on their time. And now this time we will clear about the clergy class, which is belong to the priest class of that society. As for our content, we have seen that is this story is related to the European area, the area which is belong to the European, and before European emperor, that is there was a main important emperor, that is the Roman emperor. So after disintegration of the Roman emperors, how do they Christian religion come into powers and how they spread into different region of the Europe like France, Italy and the Germany. So in this chapter we will see about the France and the England. So we are taking about the first of all France, how do they France develop in the time. So we have clear about the nobility. Now we are taking second most important order of the society, that is known as the clergy. So here we are starting. Today's topic, three orders. Our topic is three orders. Okay. So what about the three orders? How do they survive in the society? As for our content, the clergy is belong to the priest class. Clergy is belong to the priest class. Priest class, where there is a churches. After the church, after the land ownership of the noble class, church become a more powerful because Christian language become a more important on this time. So they are not responsible to the king. यानी जो चर्च के जो प्रीस्ट होते थे, जिसे हम पुजारी या पादरी कहते हैं, वो किसी भी राजा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे. they use all privilege which is related to the nobles or which is related to the land. यानी कि उनको भी उतने ही अधिकार थे जितने नोबल्स को थे. इसके अलावा और वो क्या क्या करते थे क्लर्जी, वो हम देखते हैं. जस्ट लाइक कि इनका हेड ऑफिस कहाँ था. द हेड ऑफ वेस्टर्न चर्च वाज द पोप, यानी कि जो इनका हेड था वो था पोप. पोप जो था वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता था? दे बिलीव टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी, and the Christian in Europe were guided by the bishops. जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है जिसको बिशप्स गाइड करते थे. बिशप्स यानी कि जो चर्च के पुजारी होते हैं, और द क्लैरिक्स यानी कि जो उसकी पूजा का काम करते हैं. सो कंटिन्यू द फर्स्ट ऑर्डर, द मोस्ट विलेज देयर हैड ऑन चर्च, और ये सारी चर्च के जो ये थे वो ऑनर्स थे. ओके. The people assume every Sunday to listen the sermon of the priest, यानी कि हर संडे लोग इकट्ठा होते थे. आपको पता ही है कि संडे इनका हॉलीडे प्रीस्ट ऐसा डे होता है जहाँ पर ये इकट्ठे होते हैं, और उसके अलावा ये एक sermon करते हैं. sermon इन द सेंस ग्रुप में प्रेयर करते हैं. ओके. नाउ अबाउट द कि कौन बन सकता था क्लर्जी या प्रीस्ट. ठीक है. तो हर कोई प्रीस्ट नहीं बन सकता था. सम वर्ड आर लेफ्ट, जस्ट लाइक अ सर्फ्स कुड नॉट मेक प्रीस्ट. कौन कौन प्रीस्ट नहीं बन सकता था देखते हैं हम. दैट इज द सर्फ. सर्फ यानी कि कुछ ऐसे पर्सन जो
दास होते हैं, जो हमारे गुलाम होते हैं, दैट इज नोन एज द सर्व्स। ठीक है, सर्व इन द सेंस गुलाम, जो कि सेवक होते थे। क्लियर, वो प्रिस्ट नहीं बन सकते थे। एंड आफ्टर दैट जो फिजिकली चैलेंज पर्सन होते थे, यानी कि जो फिजिकली चैलेंज पर्सन होते थे, इसके अलावा वेमेन्स, ये लोग प्रिस्ट नहीं बन सकते थे, ये आपको याद रखना है। अब इनको क्या क्या एडवांटेज मिले था, तो इनको एक एडवांटेज मिला था, दैट इज द कि ये कलेक्ट द टैक्स, और वो टैक्स था टीथ यानी कई लोग इसको टाइथ भी बोलते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स, एक तरह का ये टैक्स है। और जो कलेक्ट किया जाता था चर्च से, ये कैसे कलेक्ट करते थे, दैट इज कि द चर्च वॉज एंटाइटल द 10th शेयर ऑफ द वॉट एवर, यानी कि 10th शेयर, उनकी जो टोटल वर्थ होती थी, यानी कि द चर्च वॉज एंटाइटल द 10th ऑफ share whatever the peasants of product from their land over course of the year, यानी कि उनकी लैंड से जो भी कल्टीवेटेड हुआ है उसका कितना परसेंट, 10वां हिस्सा एज अ चर्च को पे करना पड़ता था, पेड टू चर्च, पेड टू चर्च। क्लियर, चर्च मतलब उनका जो ये हिस्सा था वो किसको जाता था, चर्च को जाता था। तो ये हमें याद रखना है। क्लियर स्टूडेंट, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइथ, यानी टाइथ भी बोलते हैं, टीथ भी बोलते हैं, कि अपनी क्रॉप का 10वां हिस्सा चर्च को देना पड़ता था। तो ये एक तरीके से प्रीस्ट की इनकम थी। क्या था ये, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ प्रीस्ट, यानी कि प्रीस्ट की इनकम का ये सोर्स था। और इस तरीके से मैनी ऑफ देयर लैंड, यानी कि उनकी जो बहुत सारी जमीन थी वो क्या हो गई थी, काफी सारी जमीन पर वो टैक्स लेने लग गए थे फ्रॉम देयर लैंड एंड ओवर द ईयर। क्लियर, नाउ नेक्स्ट कस्टम दैट इज कि सम इम्पोर्टेंट सेरेमनीज होती, कुछ इम्पोर्टेंट सेरेमनीज इन द सेंस कुछ ऐसी प्रथाएं थी उनकी जो उन्होंने फ्यूडल सिस्टम से सीखी थी, फ्यूडल एलिट क्लास से सीखी थी। वो क्या थी, दैट इज द नीलिंग वाइल प्रेइंग, यानी कि घुटनों के बल बैठना, नीलिंग वाइल प्रेइंग यानी घुटनों के बल बैठना, हैंड क्लैप्स हाथों को जोड़ना, हेड बोर्ड सर को झुकाना, एंड एक्सटेप्ट रेप्टिका द वे ऑफ इन विच नाइट कंडक्टेड हिमसेल्फ एज अ टेकिंग व्यू ऑफ द लॉयल्टी और टू द लॉर्ड, यानी वो अपने आप को लॉर्ड के लिए बहुत ज्यादा लॉयल शो करना चाहते थे। सो ये सारी चीजें उन्होंने देखी थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा, ताकि हेड सेंटर ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी का हेड कौन था, पोप होता था। ठीक है, और उसमें कौन कौन सी पोस्ट होती थी, बिशप्स एंड द क्लेयर्स की। ठीक है, एंड आफ्टर दैट कौन से डे वो प्रेयर करते थे, संडे वो प्रेयर करते थे। कौन कौन प्रीस्ट नहीं बन सकता, एवरीवन कुड नॉट बिकम अ प्रीस्ट, तो कौन नहीं बन सकता था, सब मतलब जो गुलाम होते थे, इसके अलावा फिजिकली चैलेंज जो फिजिकली वीक होते थे, एंड विमेन्स कुड नॉट मेक द प्रीस्ट। ओके, टैक्स विच टैक्स दे टेक, दैट इज द टाइथ, 10% of the total production of the land. Now come to the next point, that is monks. Who were monks? Monks in the sense bhikshu. The monks. Monks के लिए क्या प्रोविजन थे हम देखते हैं। monks कोई भी बन सकता था, मेल और फीमेल्स, anyone can make monks, यानी कि जो भिक्षु था वो कोई भी बन सकता था। अपार्ट फ्रॉम द चर्च, ये चर्च के अलावा था, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटीज के अलग डीपली रिलीजियस पीपल चूज टू लिव आइसोलेटेड लाइव्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट क्लैरिसीज, यानी कि प्रिस्ट के अलावा एक और कम्युनिटी थी, इसको क्लैरिसीज की, हु लिव अमंग द पीपल इन टाउन एंड विलेज, जो कि कहाँ रहते थे, हु लिव्ड अमंग द पीपल। देखिए, ये लोगों के बीच में रहते थे, बट इनके लिए क्या था, पीपल इन टाउन, दे लिव्ड इन द रिलीजियस कम्युनिटी कॉल्ड ओबे, और ये जिस कम्युनिटी में रहते थे उसको क्या कहते थे, एबेस, यानी कि
एबेस। एबेस का मीनिंग होता है मोनेस्ट्रीज। क्या नाम होता है इनका? मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज एक तरीके से जिसको हम मठ भी कहते हैं। मठ मतलब वो जगह जहाँ लोग इकट्ठे होकर के रहते हैं, जहाँ पर ये पूजा पाठ करते हैं। सो दे प्लेस वर फॉर्म ह्यूमन हैबिटेशन, यानी कि जो ऐसा जगह है जो जहाँ पर ह्यूमन नहीं रहते थे, यानी कि थोड़ा गांव से या शहर से अलग। टुवर्ड मोर वेल नोन मोनेस्ट्रीज द एस्टेब्लिश एट द सेंट पेडिक्स। ऐसे हमें 2 मोनेस्ट्रीज का पता चला है। 2 मोनेस्ट्रीज। तो वो कौन कौन सी 2 मोनेस्ट्रीज है आपको पता लगाना है कि राइट द नेम ऑफ 2 मोनेस्ट्रीज। कौन कौन सी है 2 मोनेस्ट्रीज हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो मोनेस्ट्री है दैट इज द बेनेडिक्ट इन इटली। फर्स्ट बेनेडिक्ट इन इटली। इटली में कब बनाई गई थी ये? 5 to 9 में। ठीक है, तो इसका हमें मेंशन मिला है। और दूसरी मिली है हमें क्लनी में। सेकंड हमें मिली है क्लनी। ठीक है, क्लनी इज द नेम ऑफ प्लेस इन द बरगंडी इन 910 इन बरगंडी। क्लियर? बरगंडी में 910 में। तो ये 2 प्लेसेस है जहां पर इस तरह की मोनेस्ट्रीज मिली है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेयर द मोनेस्ट्रीज कैन बी सीन। मोनेस्ट्रीज के 2 प्लेस। अब हम बात करते हैं कि कुछ जो मोंक्स होते थे मठ के, उनके लिए कुछ रूल्स थे, कुछ रेगुलेशंस थे। तो व्हाट वर द रूल्स फॉर मॉन्क्स। मॉन्क्स के लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस थे? तो हम बात करेंगे कि इनको ज्यादातर अपना स्पेंड टाइम करना पड़ता था प्रेयर में। स्पेंड देयर टाइम इन प्रेयर, यानी कि इनको ज्यादा समय प्रार्थना में निकालना पड़ता था। इसके अलावा स्टडी एंड मैनुअल लेबर, स्टडी करते थे। स्टडी एंड मैनुअल लेबर, यानी कि इनको खुद का काम खुद करना पड़ता था, मैनुअल लेबर करना पड़ता था, लाइक फार्मिंग। इसके अलावा लाइफ ऑफ द ओपन बोथ एंड वुमेन एक्सपेक्ट अ फ्यू केसेस ऑल ऑब्वियस वर सिंगल सेक्स कम्युनिटीज इन द देयर वर सेपरेट एबे फॉर द मैन एंड वुमेन। और मैन और वुमेन के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था थी। यहाँ पर एक वर्ड हम बताएंगे, जो मोंक्स थे वो कौन बनते थे? जो मॉन्क्स बनते थे कि एनीवन कैन मैन, लेकिन जो मॉन्क्स थे वो बनते थे मैन, यानी कि मेल। और जो फीमेल होती थी वो क्या कहलाती थी? नन, नन्स। ठीक है, वो क्या होती थी? फीमेल। ये हमें याद रखना है। जो फीमेल होती थी वो नन कहलाती थी और मैन जो क्या कहलाते थे? मॉन्क्स कहलाते थे। ओके, और दोनों के लिए कैसा था? सेपरेट प्लेस, यानी कि ये अलग अलग रहते थे, सेपरेट प्लेस में रहते थे। तो मॉन्क्स के लिए क्या रूल थे हमने देख लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे मोनेस्ट्री वर्ड एक ग्लॉसरी में दिया हुआ है। तो मोनेस्ट्री क्या होता है? मोनेस्ट्री डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहाँ से बना है ये मोनेस्ट्री वर्ड? दैट इज फ्रॉम द ग्रीक। इट इज गिवन इन योर ग्लॉसरी, बुक में साइड में दिया हुआ है, जिसमें मोनोस होता है, ग्रीक वर्ड मोनोस। और मोनोस का क्या मीनिंग है? टू लिव अलोन, टू लिव अलोन, यानी वो व्यक्ति जो अकेला रहता है। क्लियर? तो मोनेस्ट्रीज ग्रीक वर्ड से बना है जिसका नाम है मोनोस, और मोनोस का मीनिंग होता है अ पर्सन लिव अलोन। नाउ ऐसे ही 15 to 20% की कम्युनिटी थी और मोनेस्ट्री वो कम्युनिटी ओपन सेवरल 100 द लार्ज बिल्डिंग्स एंड द लैंडेड कास्टेड अटैच स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स दे कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। ये लोग क्या करते थे? ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते थे। कंट्रीब्यूट किसमें? हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस
यानी उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा डोनेशंस करते थे। एंड द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, और डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, यानी कि कला के क्षेत्र में भी ये बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का काम करते थे। तो एक पर्सन है दैट इज द आबेज हाइकर, द गिफ्टेड म्यूजिशियन। ही डिड टू बिलीव द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी सिंगिंग ऑफ प्रेयर्स इन चर्च फ्रॉम द 13th century। सम ग्रुप ऑफ monks कॉल्ड फ्रायर्स, जो ग्रुप ऑफ monks था, ग्रुप ऑफ monks, उसे क्या नाम दिया गया है? देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज द फ्रायर्स। फ्रायर्स, ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे हम इसे? फ्रायर्स, फ्रायर्स। So choose not to be based on the monastery to move place to place and preaching the people who living in the charity। और ये क्या करते थे? ये प्लेस टू प्लेस मूव करते थे, घूमते रहते थे, प्लेस टू प्लेस मूव करते थे। और क्या काम करते थे? चैरिटी का काम करते थे। चैरिटी इन द सेंस लोगों के लिए भलाई का काम करना, दैट इज नोन एज द चैरिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट कंटेंट दैट इज द चर्च एंड द सोसाइटी, यानी कि जो चर्च था सोसाइटी में वो कैसे था, किस तरीके से वहां पर सिस्टम को डेवलप किया गया है। सो ऑल जो क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको नोटबुक में भी करने होंगे। ओके, नाउ द चर्च एंड सोसाइटी, चर्च एंड सोसाइटी। ओके, तो व्हाट अबाउट द चर्च एंड सोसाइटी? देखिए यूरोपियन क्या बन गया? यूरोपियन क्या बन गया? क्रिश्चियन का, यूरोपियन क्रिश्चियंस का सेंटर बन गया। ठीक है, क्रिश्चियन का मेन सेंटर बन गया, मेन सेंटर ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो सम ऑफ द बिलीव्स मैजिक फॉर ट्रेडिशन, द क्रिसमस ऑफ द ईस्टर बिकम इम्पोर्टेंट डेट्स। कौन सी तो डेट इम्पोर्टेंट बन गई? क्रिसमस। आपको सबको पता है क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं? 25 दिसंबर, यानी कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म होता है, दैट इज द क्रिसमस। और इसके अलावा कौन सा था? ईस्टर। ये दो फेस्टिवल्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गए थे, जो कि कब सेलिब्रेट किए जाते थे? फ्रॉम द 4th century द क्रिस्ट वर सेलिब्रेट 25 दिसंबर। This places the pre-Roman festival, the date of calculated by the scholar calendar. Easter marked the purification of the Christ and the rising from his dead. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है आपको जो करना है, बट आप ये दो चीज याद रखिए कि दैट इज द ईस्टर। ये दो फेस्टिवल्स होने लगे थे किसके? क्रिश्चियंस कम्युनिटी के। क्लियर? Now, with the coming of Christianity, they continue to the called village to parish, the area under the supervision of one priest. जो एरिया एक प्रिस्ट के सुपरविजन में आता है उसको क्या बोलते हैं? पैरिश। पैरिश, पैरिश इन द सेंस कि द एरिया अंडर द सुपरविजन ऑफ, अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्रिस्ट। एरिया, एक ऐसा एरिया जो किसी प्रिस्ट के सुपरविजन में आता हो। क्लियर? सो ओवरवर्क्ड पीजेंट्स वेलकम्ड to holidays because they were not expected to work then. These days were meant for the prayer, but people usually spent a good part of them having fun or fasting. यानी अब उनको एक डे ऐसा मिलने लगा जिस दिन छुट्टी होती थी। छुट्टी का मतलब उनका था प्रेयर करना, बट ज्यादातर लोग क्या करते थे? उसमें एंजॉय करते थे। ओके, नाउ द थर्ड ऑर्डर, लास्ट फ्रांस का जो थर्ड ऑर्डर है, दैट इज द पीजेंट्स। थर्ड ऑर्डर ऑफ दैट इज पीजेंट। थर्ड ऑर्डर पीजेंट्स। अब देखिए यहाँ पीजेंट्स की दो कैटेगरी है, फ्री एंड अनफ्री।
दूसरी है अनफ्री। ये क्या होते हैं फ्री और अनफ्री, मैं आपको बताती हूँ। देखिए कि बहुत सारे जो पीपल्स थे, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल नेमली दोज हु सस्टेन फर्स्ट ऑर्डर कल्टिवेटर्स वर टू काइंड्स, द फ्री पीजेंट्स एंड द सर्व। यानी कि फ्री पीजेंट्स जो बिल्कुल किसी तरह के दबाव से मुक्त थे, फ्री पीजेंट। कौन थे फ्री पीजेंट्स, हम देखते हैं। जो थे हेल्ड देयर फर्म्स एज अ टेनेंट ऑफ द लॉर्ड। क्या थे? हेल्ड देयर फर्म्स, हेल्ड देयर फर्म्स, यानी कि अब उनकी अपनी खुद की जमीन थी, एज अ टेनेंट, एज अ टेनेंट, एज अ टेनेंट्स ऑफ द लॉर्ड, ऑफ द लॉर्ड। यानी कि ये वो लोग थे जो अपनी लॉर्ड के प्रति बिल्कुल फ्री थे। और द मैन हैड टू द रेंडर मिलिट्री सर्विस एटलीस्ट 40 days, पीजेंट फैमिली हैड टू एक्साइट। और इसके अलावा जो दूसरी फैमिली थी, जो दूसरे टाइप के थे जिसको हम सर्व कहते हैं, सर्व जो कि दास थे। और ये किससे बना है वर्ड? सर्व से बना है। सर्व मतलब ऐसा जो सेवा करता है। क्लियर? तो उसके लिए क्या कंपल्सरी था? द मैन हैड टू रेंडर मिलिट्री सर्विस एटलीस्ट 40 days। कितने डेज की? 40 days की मिलिट्री सर्विस करना कंपल्सरी था। क्लियर? मिलिट्री सर्विस कंपल्सरी था। पीजेंट्स फैमिली, अभी एक्चुअली क्या इनके लिए ही चल रहा है ये सारी चीज। ओके, और आफ्टर दैट द यूजुअली 3 but often more, यानी कि द आउटपुट फ्रॉम द सच लेबर कॉल्ड लेबर रेंट गुड टू गो डायरेक्टली टू द लैंड। और इस तरह के काम को वो क्या कहते थे? लेबर रेंट, जो कि डायरेक्टली किसको जाता था? लॉर्ड्स को जाता था। यानी कि जो वो 40 दिन का काम करते थे उसके बदले जो भी वो होती थी लेबर, वो किसको जाती थी? उनके मालिक को जाती थी। नेक्स्ट इज द they could not require to the other unpaid service like digging ditches, gathering firewood. They could be required to do, यानी और भी वो काम कर सकते थे। क्या क्या? अनपेड लेबर, जिसमें उनको पैसे नहीं मिलते थे। दैट इज द लाइक डिगिंग डिचेस, जमीन पे गड्ढा खोदना, गैदरिंग फायरवुड, लकड़ियाँ इकट्ठा करना, एंड अदर वर्क दैट इज द बिल्डिंग फेंसेस, रिपेयरिंग रोड्स, बिल्डिंग्स बिसाइड द हेल्पिंग फील्ड। विमेन एंड चिल्ड्रंस हैड टू द टास्क, यानी कि विमेन चिल्ड्रंस किसी को भी इस टास्क को पूरा करना पड़ता था 40 दिनों के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं सर्व। सर्व्स क्या थे? सर्व्स, सर्व्स का मीनिंग होता है जो सर्विस करता है, यानी कि सर्व जो सेवा करने वाला दास होता है। क्लियर? अब वो क्या करता था? देखिए कि कल्टिवेटेड द प्लॉट ऑफ लैंड बट दीज बिलोंग टू द लॉर्ड। यानी कि वो जिस प्लॉट पर कल्टिवेट करता था, प्लॉट ऑफ कल्टिवेटेड, और जिसका ऑनर कौन होता था? लॉर्ड, ऑनर्ड बाय लॉर्ड, यानी वो उसके पास जमीन नहीं होती थी। बट दीज बिलोंग टू द लॉर्ड। मच ऑफ द प्रोड्यूस फर्म ऑफ हैड टू गिवन टू द लॉर्ड, यानी कि जो भी प्रोड्यूस होता था फर्म से, प्रोड्यूस गिवन टू द लॉर्ड, यानी कि जो भी उत्पादन होता था वो सब किसको देना पड़ता था? लॉर्ड को देना पड़ता था। दे ऑल्सो द वर्क द लैंड विच बिलोंग टू द एक्सक्लूसिवली टू द लैंड। दे रिसीव वेजेस, कुड नॉट, दे रिसीव नो वेजेस, दे रिसीव नो वेजेस, यानी कि उनको कोई भी वेतन नहीं मिलता, कोई भी वेतन नहीं मिलता। एंड कुड नॉट लीव, कोई भी छुट्टी भी नहीं ले सकते। एंड कुड नॉट लीव,
यानी कि उनको छुट्टी भी नहीं मिल सकती, ना ही वो काम को छोड़ सकते थे। द एस्टेट विदाउट लॉर्ड्स परमिशन, विदाउट लॉर्ड्स परमिशन, यानी लॉर्ड की परमिशन के बिना। द लॉर्ड्स claimed a number of monopolies to expense the serfs. Serfs could not easily lords will to print their floor. यानी कि कुल मिलाकर जो सर्फ्स थे उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। जो फ्री पीजेंट थे वो फिर भी अपना काम चलाते थे। कैसे चलाते थे कि बदले में उनकी खुद की ज़मीन थी, बस 40 डेज का उनको वक्त देना पड़ता था। जो सारा वक्त किसका होता था? लैंड ओनर का होता था। तो जो सर्फ्स थे उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बिकॉज क्योंकि हमने देखा कि उनका जो खुद का जो प्लॉट होता था वो खुद का नहीं होता था। दे ऑनर्ड बाय द लॉर्ड्स। जो भी प्रोड्यूस होता है गिवन टू द लॉर्ड्स, जो भी उत्पादन होता था क्रॉप का वो भी किसको देना पड़ता था? लॉर्ड्स को डिपॉजिट कराना पड़ता था। एंड दे नॉट रिसीव एनी वेजेस, उनको कोई भी वेजेस नहीं मिलता था, ना ही कोई उनको छुट्टी मिलती थी। Clear? The serf could use easily only their lord's mill to print their flour. His over to bake their bread. यानी कि उनके पास खुद का कोई घर नहीं था, खुद की ज़मीन नहीं थी, केवल उनको अगर फूड की रिक्वायर्ड होती सो दे यूज देयर लॉर्ड्स मिल्स, यानी कि उनके जो मालिक की जो आटा पीसने की चक्की होती थी उसी पे वो आटा पीस सकते थे, वहीं पर ही वो रोटियां बना सकते थे, यानी कि बेक देयर ब्रेड, रोटी बना सकते थे। एंड द वाइन प्रेजेंट डिस्टिल वाइन एंड द बियर। द लॉर्ड कुड डिसाइड whom a serf should marry or might give the blessing the serf's choice but no payment of a fee। यानी कि जो लॉर्ड था वही डिसाइड करता था कि कौन सा सर्फ किससे शादी करेगा, कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा, ये सारी चीज़ें लॉर्ड ही डिसाइड करता था। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द सर्फ। सो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन होगा कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ सर्फ्स, सर्फ्स की क्या कंडीशन थी। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ प्रिपेयर करेंगे कि पीजेंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीजेंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पीजेंट्स इन थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर में कितनी तरह के पीजेंट्स थे? 2 थे, फ्री पीजेंट और सर्व पीजेंट्स। यानी जो फ्री थे और सर्व मतलब जो गुलाम बनाकर रखे जाते थे, जिनको अपने यहाँ दास बनाकर रखा जाता था। तो ये लोग तो फ्री थे, ठीक है। तो आपकी बुक में फर्स्ट जो पैराग्राफ दिया दैट इज रिलेटेड टू द फ्री लेबर एंड दैट इज रिलेटेड टू द सर्व। ओके, सो इन दिस content we have seen that is about France, the story of France. France is divided into 3 categories, that is the noble, clergy and the peasants. In nobles we have seen about the person having the lot of land and enjoy the full power. They have supremacy in the power. They have lot of rights. उनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, इतनी ज़मीन कि उसमें पूरा का पूरा गांव आ जाए, और उस गांव में रहने वाले लोग क्या करते थे, उस नोबल्स का काम किया करते थे। नोबल जिस घर में रहता था उसको मेनर कहते थे, जो कि बहुत बड़ा हाउस होता था, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आफ्टर दैट किस तरीके से क्रिश्चियन लैंग्वेज वहाँ की इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई थी। एंड आफ्टर दैट कि क्लर्जीज की क्या पोजीशंस थी, क्लर्जीज किस तरीके से पर्सन से टैक्स लिया करते थे, और वो टैक्स था टीथ में 10% वो टैक्स लिया करते थे। और कुछ जो मॉन्क्स के रूल्स थे, मॉन्क्स को कैसे रहना पड़ता था, मॉन्क का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता था, और कुछ 2 जो मोनेस्ट्रीज थी वो हमें कहाँ पर मिली है, वो मोनेस्ट्रीज आपको लिखनी होंगी। क्लियर। एंड आफ्टर दैट द सोसाइटी, जो चर्च सोसाइटी में होती थी, और एक जो प्रीस्ट उसको संभालता था, वो पैरिश कैसे बनी, यानी पैरिश क्या होती है। एंड आफ्टर दैट द थर्ड ऑर्डर दैट इज रिलेटेड टू द पीजेंट्स। पीजेंट इन द सेंस कि 2 काइंड ऑफ पर्सन, फ्री
and the unfree. Unfree in the sense जो मुक्त जो बंधक बनाकर रखा गया है, जिसको हम गुलाम या दास कहते हैं. नेक्स्ट कंटेंट वी विल सी अबाउट द इंग्लैंड, क्योंकि ये जो सिनेरियो था ये फ्रांस से रिलेटेड था. जैसा हमने कहा था कि इस बुक में हमें दो कंट्रीज के बारे में पढ़ना है, फ्रांस और इंग्लैंड. अभी तक जो सिनेरियो था दैट इज रिलेटेड टू द फ्रांस. नाउ next will be started from the England, how the English so England has developed on that time. England कैसे develop हुआ. So students take care, वर्क टाइम टू टाइम करते रहिए. ध्यान रखिए बुक्स अगर आपने नहीं ली तो बुक ले लीजिए और चैप्टर को भी साथ साथ पैरेलली रीड करते रहिए. वॉच एंड लिसन वीडियो अटेंटिवली, प्रिपेयर अ सेल्फ नोट्स, सॉल्व द क्वेश्चन एंड select the objective portion from this content in maximum number. It will provide help in your test. So everyone be ready for the next test. So till then आज के लिए इतना ही. आगे हम नए चैप्टर से शुरुआत करते हैं. Okay students, take care, goodbye.